आज हमारे साथ है कोमल शर्मा जी, हमारी पेरेंटिंग गाइड। तो जैसा कि कोमल जी हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स जो पहली बार अपने बच्चे को स्कूल डालने वाले हैं, किसी भी स्कूल में पेरेंट्स के लिए एक बहुत मुश्किल ये वक्त होता है कि इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्कूल फॉर योर किड? That's Lata ji, that's a very good question. Basically, अब academic session खत्म हो रहा है, न्यू academic session शुरू होने वाला है और ये जो पेरेंट्स के बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि हाउ टू चूज द राइट स्कूल. And generally what happens is कि they just go by like the Google review or some particular thing. Okay, fine, this is the or some friend suggested. Yeah, कभी-कभी friend suggest करते हैं या relatives के बच्चे वहाँ जा रहे हैं. But then apparently what happens is कि आप कितने खुद prepared हैं उस particular process के लिए, because it's a process. Right. आप you will not want कि आप nursery में बच्चे को admission करा के grade 2 में निकालना चाहेंगे, right? So my suggestion is पहले तो आप ये decide कीजिए as a parent कि आप कौन से board से comfortable हैं. Parents who have done CBSE, parents who have done IGCSE और ICSE, पहले आप एक बोर्ड चूज करें कि वो स्कूल पर्टिकुलरली कौन सा बोर्ड ऑफर कर रहा है आगे जाके. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज एज पेरेंट आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी. एब्सोल्युटली. एंड देन आज के टाइम की पेडागोजी बहुत डिफरेंट हो चुकी है, विच समटाइम्स इवन parents feel that like education इतना कोई big deal नहीं है, teaching ABC is not a big deal, but no, pedagogy has changed a lot. काफ़ी schools के different style of curriculums आ चुके हैं. So ये जानना कि style क्या है, teaching style क्या है, क्या approach होता है, क्या vision है, उनका primary, pre-primary, secondary program किस तरह का है, that's very very important. And it's important to also know that how they continue with the education system, in the sense like the way they teach, the way they take assessments are important. So if you think that like there are schools who take continuous assessments, proper paper pencil assessments, आपका बच्चा उस चीज़ के लिए ready है नहीं है, और there are schools who do not believe in kind of a formal assessment. They take continuous assessments in terms of when they are doing activities in the class. So वो एक continuous assessment करते हुए जाते हैं where there is no pressure of exams. Putting it in simple words, so can we say that कि अगर आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाने वाला है तो ठीक है, इतना बड़ा ये डील नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व भी करने पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. Yes, right? and like if you talk about cities like Gurugram, there are so many schools. आप सिर्फ ये सोच के कि ओके ये टॉप रेटेड स्कूल है मेरे सिटी में, मेरे या फिर मे बी एक महंगा स्कूल है तो वो अच्छा होगा. Well, that depends on there is a perception, right? Parents who are earning well, they think कि मैं अपने बच्चे को होता है ना अपनी हैसियत से ज़्यादा ऊंचे स्कूल में डालूंगा तो शायद उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी. There is a perception. So that's an individual's choice, but then at the same time it's very very important that as a parent आप कितने equipped हैं to handle that kind of a curriculum, pedagogy, because if you do that you also need to understand and learn. Unlearn and learn lot of new things, because आज का education system बिल्कुल different हो चुका है, which emphasizes more on comprehension and expression instead of rote learning. So right. And हमारे time में हमारे age के time पे तब pedagogy was different. It was more based on rote learning. So that's very very important कि आपको ये समझना है कि स्कूल कौन सा बोर्ड फॉलो करता है, पेडागोजी क्या है, उनका असेसमेंट क्राइटेरियाज क्या हैं, वो किस तरह से असेसमेंट्स करते हैं. अगर आपका बच्चा उन चीज़ों के लिए रेडी है, इफ़ सपोज योर चाइल्ड हैज़ अ पर्सनालिटी वेयर द चाइल्ड इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, सो अकॉर्डिंगली अब अपने बच्चे के बिहेवियर और नेचर के हिसाब से भी चीज़ों को एसेस करना पड़ेगा. सो आप पहले अपने बच्चे का पर्सनालिटी समझिए एंड अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड स्कूल के क्या डिमांड्स हैं, स्कूल का क्या पेडागोजी है, वो आपको कितना समझ आ रहा है. इवेंचुअली यू विल हैव टू हेल्प द चाइल्ड, हेल्प द किड इन द लर्निंग प्रोसेस. बिल्कुल राइट. तो अगला सवाल उठता है कि अगर आपने स्कूल डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको इस स्कूल में बच्चे को भेजना है, देन स्टेप कम्स कि आपको अपने बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है स्कूलिंग सिस्टम के लिए. तो कोमल जी प्लीज.
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ये आपका एक थॉट है, आपको पता है कि अप्रैल से अब आपका बच्चा न्यू स्कूल जाएगा, राइट? एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो आपको बच्चे को अब 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले से प्रिपेयर करना शुरू करना है। जैसे कि स्कूल का एक फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं जिसमें अर्ली उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम डिस्टेंस मैटर्स। कभी कभी बच्चों को हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो वो बच्चा थोड़ा बहुत यूज टू होना चाहिए टू ट्रैवल। सो अब आप सडनली एक छोटे से बच्चे को जो 4 ईयर ओल्ड है, 4.5 ईयर ओल्ड है, उसको आप सडनली एक स्कूल बस में बिठाते हैं, तो उसके लिए वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है। सो बेटर है कि आप उस बच्चे को टाइम से उसी टाइम पे उठाना शुरू कीजिए, 2 महीने पहले 3 महीने पहले, सो दैट द बच्चा इज यूज टू हैविंग दैट रूटीन कि मुझे अराउंड 7ish उठना है, बाय 7:30 रेडी होना है, देन लाइक नो ब्रेकफास्ट करना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जब ये एक चेंज आता है उनकी लाइफ में तो बहुत सफर करते हैं, लाइक क्रैंकी हो जाते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। सो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है स्कूल्स को ट्रैवल करना, एक वो भी विदाउट पेरेंट्स। यस सो बहुत सारे स्किल्स उनके लिए सडनली होता है कि अरे एक्सपेक्टेड होता है कि उन्हें आना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट इज कि वो बच्चे को जो आपको आदत है हाथ से खिलाने की, स्कूल में कोई हाथ से नहीं खिलाएगा। टू मेक दैट जर्नी इजी, आप उसका सफर थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, उसको पहले से इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके उसको आदत डाल के। यस, सो आपको जैसे स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है कि टिफ़िन होगा, जो बॉटल बच्चा ले जाने वाला है वो 2 महीने पहले खरीदिए, लास्ट डे मत खरीदिए। उसी बॉटल से उसको पानी पीने की आदत डलवाइए, उसी टिफ़िन बॉक्स को खोलना सिखाइए, स्पून फोक जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्नैक्स देने के लिए, टिफ़िन देने के लिए, वो हैबिट्स, नैपकिन कैसे स्प्रेड करना है, वॉशरूम कैसे बताना है, कैसे अपनी नीड्स को दूसरों से को बताना है कि मुझे अभी पानी चाहिए, मुझे अभी वॉशरूम जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है। ये सब की थोड़ा थोड़ा बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। इफ़ पॉसिबल, इफ़ योर स्कूल अलाउज, आप बच्चे को वीकेंड, सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन आफ्टर स्कूल आवर्स, जब स्कूल नहीं फंक्शन होता है वहाँ पे आप लेके भी जाइए बच्चे को थोड़ा सा, सो दैट बच्चा गेट्स यूज्ड टू द बिल्डिंग, बिकॉज समटाइम्स इट्स ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड। इतनी बड़ी बड़ी नया एनवायरनमेंट होता है, कॉरिडोर्स, वो सब देख के बच्चे के लिए इट इज लाइक a tiny kid like no going to a huge structure, because generally वो play school गए होते हैं which are like थोड़ा comfortable for them. So when you are shifting your kid to a big school, so make sure कि आप 1-2 बार उसको लेके जाएं, स्कूल दिखाएं, स्कूल के राउंड्स लगवाएं, थोड़ा पार्क ले जाएं उसको, थोड़ा थोड़ा उसका जो स्कूल जहाँ पे वो जाने वाला है, जहाँ क्लास होने वाली है, विद द परमिशन ऑफ स्कूल, ये उसको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कराना शुरू कीजिए। इफ द स्कूल हैज़ यूनिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, kids struggle like no wearing a formal uniform, especially if it has a belt, buttons, zips. So वो यूनिफॉर्म 2 months पहले खरीदिए, उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा हैबिट डालिए उस यूनिफॉर्म को पहन के 3 hours रहने के लिए, 4 hours रहने के लिए, so that बच्चे के लिए वो ट्रांजिशन ईजी हो। Wow, what wonderful tips you've given. I wish you were there to help me out, because I saw my child, actually suffering, because वैन में बैठना या बस में बैठना was like she used to feel pukish and all. तो वो एक सारे ही पेरेंट्स उस चीज़ को फेस करते हैं, और ऐसी गाइडेंस मिल जाए तो वाओ। आई रियली होप कि आप सभी को ये टिप्स आगे आने वाले आपके समय में, अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाने वाला है या ऑलरेडी जा रहे हैं, तो उनको अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और आज का ये शो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच कोमल जी।